Let's get to know Nelson Mandela first, and after that we'll dive into the chapter. Okay, so Nelson Mandela was born in the year 1918 and he died in 2013. He was a philanthropist, a political leader, and anti-apartheid. So this is a very very important term हमारे इस chapter में. So हम इस term के अंदर detail में जाएंगे आगे. Okay. So he was the first president of South Africa after serving prison for 27 years. He was the first president of South Africa. Remember this. Okay? First black president of South Africa. So Mandela's leadership, advocacy, reconciliation and equality made him an international symbol for struggle against apartheid and an icon for peace and justice. कुछ याद हो या ना हो नेल्सन मंडेला के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर एज वेल, ही वॉज एन आइकन फॉर इक्वालिटी एंड पीस एंड ही वॉज नोन ग्लोबली. मतलब he has done such revolutionary works for the world, for the society, mainly for the black people, that he is remembered as the icon for peace and equality, even for and for justice as well. Okay, so these three are the main points about Nelson Mandela. So as I told you, this chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, born on 18th July 1918. Okay, extract है, मतलब पूरी ऑटोबायोग्राफी में ये एक छोटा सा पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है उसकी ऑटोबायोग्राफी में से, मतलब ऑब्वियसली अगर ये एक्सट्रैक्ट उठा के चैप्टर में दिया है, दिस मस्ट बी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एज आई टोल्ड यू. ओके, फ्रॉम 27 years, 27 साल जेल में, अपनी आधी जिंदगी जेल में बिता देना इज सच अ बिग थिंग. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कंटेन्स पार्ट डिस्क्राइबिंग मंडेलाज अपने पर्सनल स्ट्रगल्स, उसके क्या स्ट्रगल्स रहे, उसका प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन व्हेन ही वॉन द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, उस टाइम पे वो सिचुएशन क्या थी, कोट्स फ्रॉम ए स्पीच, जो उन्हें स्पीच दी थी उस टाइम पे वो क्या था, एंड उनका एडमायरेशन फॉर अदर फ्रीडम फाइटर्स who fought for their freedom. Okay, these are the points I'm underlining, are the main points. Okay, so Mandela's presidential inauguration, okay, quotes from his speech, his personal journey as a freedom fighter. Okay, he was a freedom fighter, main point to remember, and the challenges he faced, also the admiration for the freedom fighters जिनने freedom के लिए लड़ाई लड़ी. ठीक है, सो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये मेजर पॉइंट्स है जो इस चैप्टर के अंदर है, जो आगे भी डिस्क्राइब होंगे. सो अब मैंने आपको बोला था कि हम अपार्थाइड के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे. सो दिस वाज अ ब्रूटल प्रैक्टिस दैट वाज फॉलोड इन साउथ अफ्रीका एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, जब वाइट रूल था. सो इसके अंदर मैंने ये नोट तैयार किया है, एंड दिस is summary एक तरीके से. So apartheid is a political system that separates people according to their race. It is a political system जो भेदभाव करता है लोगों में on the basis of their race. अब race से क्या मतलब हुआ? Gender, caste, creed, age, skin color. मतलब एक जो आज के टाइम में जो चीज़ें आई थिंक नहीं है, उस टाइम पे people were discriminated. It was a brutal practice. मतलब if somebody is naming something as brutal, that explains what that has been, मतलब क्या होगा वो. ठीक है, it was enforced in South Africa from 1948 to 1994. This date is very important to remember. Okay, so जो अभी अपार्थाइड करता क्या था, denied basic rights and opportunities to the non-white individuals. जो basic rights and opportunities हर इंडिविजुअल को मिलने चाहिए, नॉन वाइट लोग ऑब्वियसली जो ब्लैक स्किन पीपल हो गए, उनको उनके बेसिक राइट्स अपॉर्चुनिटीज मिलते ही नहीं थे, वो डिनाई करता था ये पॉलिटिकल सिस्टम जो था. एंड इट लेड टू सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज. अब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हर तरीके की इनइक्वालिटी इसके अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं. ये चैप्टर, ये लेसन एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है हमको नेल्सन मंडेला और उनके कंपेनियंस का, जिसके अंदर दे वर्क टूवर्ड्स, जिसके अंदर दे वर्क टूवर्ड्स फॉर क्रिएटिंग अ सोसाइटी विच इज़ फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, creed, color, age, gender, free from all sorts of gender discriminations, race discrimination, prejudice, free from everything. Okay, moving forward.
So Long Walk from Freedom by Nelson Mandela tells the story of South Africa's struggle for freedom. ओके जो लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका का बताती है कैसे दे वर्क टूवर्ड्स दे गॉट देयर फ्रीडम फ्रॉम द वाइट रूल. ओके सो दिस डेट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर 10th May 1994. 10th May 1994 Nelson Mandela took oath as the first black president. नेल्सन मंडेला ने 10 मई 1994 के दिन ओथ लिया था एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ओके सो ये कहाँ हुआ था, जो इनॉग्रेशन था वो कहाँ हुआ था, वो यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया में हुआ था. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इवन आपकी बुक में भी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस जगह. ओके सो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर 3 centuries ऑफ वाइट रूल. 3 centuries ऑफ वाइट रूल के बाद उनने वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे. इज दैट उनकी पार्टी ने 252 सीट्स जीती थी. 400 सीट्स में से 252 सीट्स उनने जीती थी. एंड दिस वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस दैट वाज हेल्ड इन 1994. ओके सो अब जब वो इलेक्शंस जीते, सो these are again 2-3 points which are very important to memorize in order to form your answer. So he established democracy in the country and said that no discrimination would be on the basis of caste, color, creed, whatsoever. So when he established the democracy, okay, he even he ensured his people that जो discrimination अभी तक चलता आया है, जो हुआ है, वो नहीं होगा. On basis of whatever, किसी भी बेस पे कोई discrimination कभी नहीं होगा. Okay, and सो ऑल्सो उन्हें अश्योर किया कि जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेगी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेगी. किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक प्लेटफॉर्म पे इक्वली रखा जाएगा, किसी को ऊपर नीचे नहीं रखा जाएगा. ओके सो मैनी डिग्निटरीज फ्रॉम वेरियस कंट्रीज अटेंडेड द सिग्निफिकेंट डे. बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, जब मंडेला जीता, उन लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी फॉर्म करी, जब उनको फ्रीडम मिली, तो बहुत सारे डिग्निटरीज ने बहुत आकर सहयोग दिया, एप्रिसिएशन दिया, वो उन लोगों ने भी अटेंड किया. ओके तो ड्यूरिंग हिज स्पीच मंडेला एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टू ऑल द डिग्निटरीज. उसने अपना थैंक यू, अपना ग्रैटिट्यूड सब उनको पे किया. एज आई टोल्ड यू गाइज, ही अश्योर्ड हिज फेलो कंट्रीमैन दैट साउथ अफ्रीका वुड नेवर एक्सपीरियंस द सेम सप्रेशन ऑफ वन बाय द अदर. मतलब उनने अश्योर किया इवन अपने लोगों में से भी कोई किसी का ऑपरेशन किसी को कभी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा. उसने अपने फेलो कंट्रीमैन को ये चीज़ अश्योर करी. ओके सो दैट डे डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका एंड जिसका रिजल्ट ऑब्वियसली था अ गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन जो एस्टैब्लिश हुई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया. ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी, उस दिन उस कंट्री ने 2 नेशनल एंथम्स गाए थे, एक अपना और एक वाइट पीपल का. उन लोगों ने 2 नेशनल एंथम्स गाए थे उस दिन इन ऑर्डर टू रिमेंबर वॉट एवर जो बुरा हुआ उन लोगों के साथ, जो ऑपरेशन, जो सप्रेशन उन लोगों को वाइट रूल में झेलना पड़ा, इन ऑर्डर टू रिमेंबर दैट. सो द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका sang 2 नेशनल एंथम्स टू सिम्बलाइज दैट डे. उस दिन को सिम्बलाइज करने के लिए उन लोगों ने 2 नेशनल एंथम्स गाए. ऑल दीज इवेंट्स रिमाइंडेड मंडेला को उस दिन ऑल दीज इवेंट्स जो भी हुआ, नेल्सन मंडेला रिमेंबर हाउ ब्लैक स्किन पीपल वर एक्सप्लॉइटेड. जो मेन वर्ड है कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हर तरीके से, काले रंग के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन. मंडेला रिमेंबर्ड हाउ ब्लैक स्किन पीपल वर एक्सप्लॉइटेड इन द हैंड ऑफ वाइट रूल. सो एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, ही डीपली फेल्ट द पेन ऑफ हिज रेस. अपनी जो रेस है, अपने जो लोग हैं, उनका दर्द उस दिन मंडेला को बहुत फील हुआ. सो ही सेड, Mandela deeply felt the pain of his race and said that this type of suppression and racial domination of white skinned people against the dark skinned, मतलब जो suppression white skinned people ने हम लोगों का किया, काले रंग के लोगों का किया, वो उस चीज़ ने इतनी हार्श और इतनी इनह्यूमन सोसाइटी को जन्म दिया है कि अभी तो ये यहाँ ख़त्म हो गया, शायद कल को कहीं और शुरू हो जाए. तो ही मेनली वांटेड टू से कि इस सप्रेशन ने इतनी इनह्यूमन और इतनी हार्श चीज़ को जन्म दिया है हमारी सोसाइटी में कि काश ना ये कभी किसी दुनिया को जानने को मिले और ना कभी सहने को मिले. तो ये उसके वर्ड्स थे, ये नेल्सन मंडेला के वर्ड्स थे ड्यूरिंग हिज स्पीच. ओके सो
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने ये पॉइंट मेंशन किया है. ओके, ही स्ट्रांगली बिलीव दैट नो पर्सन इज बॉर्न टू हेट. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, मतलब नॉट टेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यू लाइन्स जो इस चैप्टर में हैं. और स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में से काफ़ी क्वेश्चंस हैं एंड रिपीटेटिवली बोर्ड में क्वेश्चन आता है इस चीज़ को लेके. सो pay attention. Nelson Mandela strongly believed that no person is born to hate. Okay, that no person is born to hate another person. अब इसका मतलब क्या हुआ? नेल्सन मंडेला here wanted to say कि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है, बॉर्न होता है, उसको पता नहीं होता हेट क्या है, पता नहीं होता लव क्या है, उसे सिखाया जाता है. ठीक है, दिस मीन्स कि कोई पर्सन जब जन्म लेता है उसको पता नहीं होता कि हेट कैसे करना है किसी दूसरे इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, बैकग्राउंड और रिलीजन. किसी भी बेसिस पे किसी पर्सन को पता नहीं होता कि क्या हेट करे, लव करे, उसे सिखाया जाता है. ठीक है, हाउएवर मंडेला उसके बाद इस चीज़ के साथ एग्री भी करता है कि एक पर्सन को सिखाया जाना चाहिए कि हेट कैसे करते हैं, कि उसे सिखाओ कि हेट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर तुम उसे हेट करना सिखाओगे तभी वो प्यार करना सीखेगा. सो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर. ओके, हाउएवर पीपल मस्ट लर्न टू हेट बिकॉज इफ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव एज वेल, as love comes more naturally to humans than hate. And he also mentions that अगर तुम किसी को हेट करना सिखा रहे हो तो दैट इज़ फाइन, तभी हम उसको प्यार करना सिखा सकते हैं. बट कीपिंग इन माइंड, प्यार कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत नेचुरली और ज़्यादा जल्दी कोई इंसान सीखता है. सो इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं जो हम डिस्कस करेंगे. सो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दीज 2 points. ऑल्सो ही मैंशंस हाउ अ पर्सन बिकम्स ब्रेव. उसने मेंशन किया है कि भाई कैसे एक इंसान ब्रेव बनता है, नॉट बिकॉज ही डज नॉट फियर, बट कोई एक इंसान कैसे ब्रेव बनता है उसका ये कहना था कि ऐसे नहीं कि भाई किसी को डर नहीं लगता, बट बाय कॉन्करिंग हिज ओन फियर्स, अपने डर के ऊपर जीत पाने से कोई इंसान ब्रेव बनता है. दीज 3 आर द लाइन्स जो मंडेला ने इस चैप्टर में बोली एंड विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मूविंग फॉरवर्ड. सो as we move forward in this chapter, so these are 2 things that Mandela mentioned. अपनी जो उस टाइम सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मंडेला स्टेटेड दैट अ मैन हैज़ 2 obligations. 2 कर्तव्य है किसी एक आदमी के. फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, अपनी फैमिली के टुवर्ड्स, अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स, अपनी वाइफ के टुवर्ड्स और अपने चिल्ड्रन के टुवर्ड्स. ओके, उसने बोला किसी एक आदमी के 2 कर्तव्य हैं. पहला जो वो अपने परिवार के टुवर्ड्स निभाता है, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपनी बीवी के टुवर्ड्स निभाता है, और दूसरा जो वो अपनी कंट्री के लिए करता है. सेकेंड टुवर्ड्स हिज मदरलैंड, countrymen and his community. This is very true. Every person should contribute towards their community, towards their country, towards their motherland. This is a necessary thing one must do. और यही मंडेला का कहना था. Okay. And he also moving, जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर he also mentioned that being a black man उस टाइम पे it was very very difficult to fulfill ये 2 major obligations जो एक इंसान की होती है. Being a black, मतलब he stated that it was difficult to fulfill both of these obligations as a black man in a country like South Africa. Something he clearly stated. Okay, so when Mandela became an adult, he understood that his freedom was an illusion. It was just something he imagined but never had. Okay, so when Mandela grew up, became an adult, so what he realized was that जो उसकी freedom है, it was just an illusion. It was not something he had. He actually could have it or feel it, but it was just an illusion and something which is temporary. उस time पे in South Africa, being a specifically मतलब major for mainly because of being a black skinned person, it was like an illusion. It was nothing. So in fact, he wasn't free, but in fact he was a slave of exploitation. उसको exploit किया जाता था उस time पे, उन लोगों को exploit किया जाता था. He was a slave of exploitation. Also, he understood that not only he was the slave, but his other family members were. Now you get it. It is not this is not only the story of Nelson Mandela, but उसके आसपास के लोगों के बारे में, that he thought उसकी फ्रीडम इल्यूजन है, बट नहीं, यहाँ तो उस टाइम पे सारे ब्लैक लोगों की फ्रीडम जो थी वो इल्यूजन है. सब स्लेव थे एक्सप्लॉयटेशन के, मैं ही नहीं था, सब थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे. ओके, सो बट मंडेला बिलीव्ड
that freedom was universal and undivided right for everyone. No matter that उस टाइम पे उसकी जो freedom थी वो illusion थी, but he firmly believed that जो freedom है वो सबका universal right है, वो सबको मिलना चाहिए. Okay, moving forward, but the people of his color, race were bound in the chains. Bound in the chains of oppression and justice. Bound in the chain of oppression and justice. And another very very important point, ये वाला, ठीक है. He understood that liberating the oppressors was important as freeing the oppressed, because those who take away another person's freedom are also trapped in the same cycle of oppression. So this is a very interesting point and a very very important point इस chapter के अंदर, most important point. So नेल्सन मंडेला ने ये बोला कि एक तो फ्रीडम सबके लिए यूनिवर्सल है, अनडिवाइडेड राइट है वो सबका. सो जो ऑप्रेस कर रहा है किसी को, दैट इज एन ऑप्रेसर. जो ऑप्रेस कर रहा है वो भी कैदी ही है, वो फ्री नहीं है. वो भी सेम साइकिल ऑफ सप्रेशन एंड ऑप्रेशन में ही है, वो फ्री नहीं है. हेंस उसको भी फ्री करना नेसेसरी है. यू नो, समझ रहे हो तुम थिंकिंग, मतलब यहाँ पे एक टेक्स्ट मतलब बोलने का तरीका जरूर समझना कि those who take away, thus the oppressor must be free. ऑप्रेसर को भी फ्री छोड़ना चाहिए. ये नेल्सन मंडेला का कहना था कि द ऑप्रेसर इज एज मच एज द प्रिजनर एज द ऑप्रेस्ड. ऑप्रेसर भी प्रिजनर है जितना ही ऑप्रेस्ड प्रिजनर है. जो ऑप्रेसर उस टाइम पे वाइट स्किन हो गया, तो वो कह रहा है वाइट स्किन वाला भी प्रिजनर ही है, क्योंकि वो सेम साइकिल ऑफ ऑपरेशन में फंसा हुआ है. ठीक है, हेंस द ऑप्रेसर इज ऑल्सो नॉट फ्री. So ये लास्ट चीज़ थी. नाउ एज वी गेट टू द कंक्लूजन, सो what we learned in this chapter, the moral of this chapter, okay, so the conclusion जो यहाँ पे निकलता है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके अंदर हम क्या सीखते हैं कि दैट brave men are not those who never feel afraid but the ones who know how to conquer the fear. So एक ताकतवर इंसान कौन है? हम लोगों को तो मतलब एक अगर हम नॉर्मल थिंकिंग से सोचे तो अच्छा जो ताकतवर है भाई, जो सब कुछ कर सकता है, मार सकता है लोगों को, अब कोई डरता नहीं है. बट एक्चुअली हु इज अ ब्रेव मैन? द वन हु कॉन्कर्स अपने फियर्स को, जो अपने डर को जीत लेता है, नॉट द वन जो डरता ही नहीं है. ओके, कि दैट ब्रेव मैन आर दोज who never feel afraid but the ones who know how to conquer their fear. ठीक है. और सेकेंडली एक कंक्लूजन में ये भी है कि दैट नेल्सन मंडेला बिलीव दैट ईच पर्सन कैरीज टू ड्यूटीज, जो हमने बात करी जिनके बारे में, फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, सेकेंड टुवर्ड्स हिज कम्युनिटी, मदरलैंड, एंड ही बिलीव्स दैट वन मस्ट फुलफिल देम. एंड इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी, फ्रीडम सबका राइट है. बीइंग द वाइट पीपल, बीइंग द ब्लैक पीपल, रिगार्डलेस ऑफ एनी रेस, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, एनीथिंग, जो फ्रीडम है वो यूनिवर्सल है और वो सबका राइट है. ओके, विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, ये वाला चैप्टर हमने ख़त्म किया. आगे हम नेक्स्ट इसका डिस्कस करेंगे वीडियो में क्वेश्चंस इसके. सो इफ़ यू गॉट एनी डाउट्स लेट अस नो कमेंट में. आई विल surely you know clear them out and help you with that, and stay tuned for another video, and till then bye bye.